We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome back. Today in this video I am going to show you use of messaging. Okay. In the earlier video I have also discussed SMS API, and in that video I have shown you how can we send message from our application. Actually the message is sent from the device on which our application is executing, but it is through our application. Now today I will show you how can our application can receive the notification about message which is received on the client device when our application is running. And if client device has an incoming message, our application can get notified, as well as if required, our application can also read that message which has come. Okay, so what I am talking is reading a message from our application or reading an SMS from our application. But for that, see, SMS is client's private data, okay, personal data we can say. So until client agree or gives permission, we cannot read his message. But today you might have seen many applications which are reading SMS from our mobile. For example, if we are using any e-commerce application or any online payment application, then it is quite common that when we are making a payment, an OTP is generated from the server of the on which the application is lying, and that OTP is sent to us via SMS. Now the application which is running will ask us, do I copy the SMS? Okay, if we agree, if we allow, then that message will be copied by the or will be read by the application and passed on the place where it is required. Okay, so ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे, जैसे कि पेमेंट कर रहे, अमेज़ॉन की एप्लीकेशन के द्वारा सपोज हम पेमेंट करें यूपीआई द्वारा, अमेज़ॉन यूपीआई, तो जब आप पेमेंट करते हो तो आपके मोबाइल में एक OTP आता है, और वो जैसे ही मैसेज आता है तो अमेज़ॉन की एप्लीकेशन आपको पूछती है कि मैसेज आया, क्या मैं उसे पेस्ट कर दूं? अगर हम हाँ कहेंगे तो क्या होगा कि अमेज़ॉन की एप्लीकेशन हमारे डिवाइस में जो मैसेज आया है उससे वो पढ़ेगी, और उसमें जो OTP है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे वो पेस्ट कर देगी अपने आप, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा. तो इस केस में हुआ क्या एक्चुअली कि उसने हमारे मैसेज को रीड किया, लेकिन हमारी परमिशन से. Okay, if we deny the permission, then it will not be able to read the SMS which has been received on our device. So ये SMS रीड करने का मैकेनिज़्म है वो ऐसा है कि इसके लिए परमिशन लेनी आवश्यक है. ओके, there is no optional way of receiving SMS without requiring permission, because it is after all something personal to the client. ओके, तो SMS रीड करने के लिए आपको टू रीड SMS यू नीड टू, अब देखो, जब भी क्लाइंट के डिवाइस में, जब भी मोबाइल में कोई SMS आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले उसकी जांच होती है, और फिर क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे डिवाइस में एक ब्रॉडकास्ट करेगी कि भाई ऐसा हुआ, क्या हुआ, एक मैसेज आया है, उसके हिसाब से एक इंटेंट वो ब्रॉडकास्ट करेगी. ओके, तो क्या होगा, when a message is received on the device, the OS will broadcast an intent. Which intent? Android.provider.telephony.sms received. So what happens here?
कि ये ब्रॉडकास्ट होता है, तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है तो वो ब्रॉडकास्ट का मतलब अनाउंस होती है, लेकिन ये उन्हीं को भेजा जाता है ब्रॉडकास्ट कि जो इसके लिए रजिस्टर्ड है। ब्रॉडकास्ट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन को इसकी जांच इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उन्हीं एप्लीकेशन को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसने इस टाइप के इंटेंट के लिए रजिस्टर्ड किया है। ये एक्चुअली है क्या, इंटेंट है जो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो जिन जिन एप्लीकेशंस ने इस इंटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि मैसेज आया है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये परमिशन लेनी होगी और हमें क्या करना होगा, एक रिसीवर बनाना पड़ेगा। सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट a broadcast receiver for this above intent। ओके, अब रिसीवर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन के वक्त मेंशन करेंगे कि भाई हमें इसके लिए रिसीव करना है। रजिस्टर द रिसीवर फॉर द above इंटेंट। ओके, अब जैसे ही हम किसी रजिस्टर को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम ओवरराइड करते हैं ऑन रिसीव मेथड को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और ये हमारा जो रिसीवर है उसके अंदर जैसे ही हमने ऑन रिसीव मेथड लिख दी तो क्या होगा, जब भी क्लाइंट के डिवाइस में एक एसएमएस आएगा तो हमारी ये ऑन रिसीव मेथड कॉल होगी। अब वो ऑन रिसीव मेथड के अंदर हमें एक चीज़ मिलेगी एज एन आर्ग्यूमेंट, वो होगा इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, अब उसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है इंटेंट का, एक्चुअली वही ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर पूरा माल सामान होगा, मतलब कि पूरा डेटा उसके अंदर होगा। मैसेज कहाँ से आया है, मैसेज का जो बॉडी है, एसएमएस का जो टेक्स्ट है, वो भी हमें इंटेंट से ही मिलेगा, लेकिन वो होगा पीडीयू के स्वरूप में। मैसेज जो होगा वो कैसे स्वरूप में होगा, मैसेज विल बी इन पीडीयू फॉर्मेट। पीडीयू का मतलब क्या है, पोर्टेबल डेटा यूनिट। ओके, तो हमें क्या करना होगा, उस मैसेज को रीड करने के लिए हमें वो पीडीयू एक्सेप्ट करने होंगे, मतलब कि उसमें से एक्सट्रैक्ट करने होंगे इंटेंट में से, एक्सट्रैक्ट पीडीयू। ओके, यूजिंग बंडल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, हम कन्वर्ट each PDU पार्ट एज बाइट्स। अब जो मैसेज होगा वो पूरा एक पार्ट नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे PDU के पार्ट्स होंगे, क्योंकि जब मैसेज किसी डिवाइस से जाता है बाहर, किसी और को हम मैसेज भेजते हैं तो हमारे डिवाइस से जब मैसेज निकलता है तो उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे PDUs में, फिर वो सभी PDUs को नेटवर्क में सेंड किया जाता है। और दूसरी ओर पे जब वो PDUs रिसीव होंगे तो उनको वापस सिक्वेंशियली कन्वर्ट किया जाएगा बाइट्स में, और बाइट्स में से फिर वापस टेक्स्ट में। ओके, कन्वर्ट ईच PDU part as bytes, then again retrieve string from PDU parts. Okay, and optionally extract the address of the sender। जो सेंडर है उसका एड्रेस भी हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स है बहुत ही सिंपल है जो हमें फॉलो करने हैं, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। पहले हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में एक एक्टिविटी को ऐड करते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, और इस एक्टिविटी को मैं नाम दूंगा SMS डेमो 1। ठीक है, अब जो इसका लेआउट है उसमें केवल मैं एक ही चीज़ रखूँगा, टेक्स्ट व्यू, क्योंकि अभी केवल हमको क्या करना है, रीड ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसका लेआउट पहले चेंज कर देता हूँ। I will turn the layout to relative layout. Okay, and after that
it is taking some time because the Gradle is built. ओके, तो एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे, उसको उसकी विड्थ हम मैच पेरेंट कर देंगे और उसके बाद हम उसके एट्रीब्यूट सेट करेंगे, आईडी सेट करेंगे, उसके फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट टेक्स्ट वगैरह सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेआउट अभी हो गया, रिलेटिव लेआउट। और उसके अंदर मैं अभी क्या करूँगा, एक टेक्स्ट व्यू को मैं अभी यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसकी विड्थ को मैंने मैच पेरेंट और उसकी हाइट को ब्रेप कंटेंट, फिर आईडी मैंने इसका रख दिया टेक्स्ट शो मैसेज, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज शो करना है इसलिए। ओके, इन सब के बीच में मैं मार्जिन भी सेट करूँगा, टॉप मार्जिन 5 dp, फिर मार्जिन लेफ़्ट में सेट करूँगा अगेन 5 dp, मार्जिन राइट सेट करूँगा मैं 5 dp। ओके, और टॉप बॉटम की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही व्यू है तो बॉटम की ज़रूरत अभी नहीं है। टेक्स्ट की साइज़ में सेट करता हूँ 25 dp, और टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो मैं बोल्ड रख देता हूँ, और टेक्स्ट का जो कलर है उसे भी मैं सेट कर दूँगा कोई अच्छा सा कलर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अलग अलग सभी चीज़ों को यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को सेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी एक्टिविटी है वहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट व्यू है उसको डिफ़ाइन कर दूँगा, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, और अपना जो ये ऑन क्रिएट मेथड है उसमें टेक्स्ट व्यू का जो रेफरेंस है वो मैं रिट्रीव करके कास्ट कर दूँगा टेक्स्ट व्यू में। ठीक है, टेक्स्ट व्यू, देन फाइंड व्यू बाय आईडी एंड देन r.id. उसका जो मैंने रखा है आईडी वो यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक है, नाउ व्हाट शुड वी डू द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले जो आपको कहा मैंने कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट ए ब्रॉडकास्ट रिसीवर फॉर दिस इंटेंट। तो अब मुझे एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बनाने के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपको एप्लीकेशन वाइड रिसीवर बनाना है तो उसको आप अलग से क्लास बना के फिर रजिस्टर करो उसे आप मैनिफेस्ट फाइल में। लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमें अभी यूज़ करना है वो केवल इस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो हमें मैनिफेस्ट फाइल में जाके उसको रजिस्टर करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ऑन क्रिएट से पहले एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, एक क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास माई मैसेज रिसीवर। ठीक है, और उसे मैं एक्सटेंड कराऊँगा, एक्सटेंड्स ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। उसके बाद यहाँ पे उसकी मेथड हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी, केवल एक ही मेथड है, ऑन रिसीव। ठीक है, अब ये मेथड कॉल होने वाली है जब मैसेज रिसीव होगा तब। तो मैं एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटेक्स्ट, जो हमें यहाँ पे ऐसे आर्ग्यूमेंट मिल रहा है कंटेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, दूसरी आर्ग्यूमेंट जो मैसेज है हमारा वो केवल यहाँ पे मैसेज रिसीव्ड ऐसा रखूँगा। एंड द थर्ड आर्ग्यूमेंट विल बी the length of the toast. I will put here length short. Okay, then dot show. Okay, इस तरह से मैंने एक क्लास बनाया my message receiver। अब इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ ऑन क्रिएट से पहले, मतलब कि ग्लोबली कहने का मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, my message receiver डिक्लेयर किया और ऑन क्रिएट के अंदर मैं उसको इनिशियलाइज करूँगा, my message receiver is equal to new my message receiver। तो इस तरह से मैंने अपना रिसीवर का ऑब्जेक्ट, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसीवर इज डन। ओके, मैंने रिसीवर बना लिया, उसकी ऑन रिसीव मेथड भी लिख दी। फिलहाल अभी जस्ट हमें एक नोटिफिकेशन देना है कि मैसेज इज़ रिसीव्ड। तो अब उसके बाद क्या करना है, रजिस्टर द रिसीवर। ओके, ऑन ओवरराइट तो कर लिया हमने ऑन रिसीव को। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, ये स्टेप्स को मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो वो भी हम ऑन क्रिएट में ही करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर रिसीवर, और पहली आर्ग्यूमेंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है माई मैसेज रिसीवर वो रहेगा। दूसरी आर्ग्यूमेंट किस प्रकार के इंटेंट को आप रिसीव करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंटेंट फिल्टर में हमें वो लिखना है, इंटेंट फिल्टर, और यहाँ पे डबल कोट्स में एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर डॉट टेलीफोनी डॉट
SMS रिसीव्ड, ठीक है, और सेमीकोलन। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको करना है यहाँ पे अनरजिस्टर भी करना है इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को हम ओवरराइड करेंगे, एक्टिविटी की ऑन डिस्ट्रॉय। उसमें क्या करेंगे कि अनरजिस्टर रिसीवर माई मैसेज रिसीवर, ठीक है। देखो अभी मैंने यहाँ पे परमिशन कोई मेंशन नहीं की है, और अच्छा यहाँ पे है रिसीव की परमिशन, उसे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और अपनी जो एप्लीकेशन है SMS डेमो 1, उसको मुझे अभी रन करना है, ओके। उसके बीच में यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में इंटेंट फ़िल्टर मुझे लिखना होगा SMS डेमो में। इंटेंट फ़िल्टर क्या करूँगा, एक्शन मेन, और उसकी कैटेगरी वो मैं क्या रखूँगा, लॉन्चर, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट किया है अपने नेक्सस के AVD पे, ठीक है। और दूसरा AVD मेरे पास ऑलरेडी अभी रन हो रहा है, वो है ये वाला जो है वो 5556 है, और ये वाला जो है वो 5554 है। अभी हमारी एप्लीकेशन जो रन हमने की है वो 5554 मतलब कि इस नेक्सस के AVD पे रन होगी, ओके। और अभी तो हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। मेरे ख्याल से अपनी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ओके। ये उसका आउटपुट है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रही है और यहाँ से हम उसको मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। ये कोई दूसरा डिवाइस है, यहाँ से हम उसको कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो देखो वहाँ पे मैसेज तो आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये रिसीवर है वो रन नहीं हुआ, ओके। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि हमने परमिशन नहीं ली है, वो भी एक कारण हो सकता है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, परमिशन लेके ट्राई करते हैं। कौन सी परमिशन लेनी है अपने को, रिसीव SMS, ठीक है। अभी रन वापस करते हैं इसको। तो अपनी एप्लीकेशन रन हो गई है। अब यहाँ से हम SMS सेंड करते हैं। SMS आ गया और अपना टोस्ट भी आ गया। देखो आप, एक्चुअली हमने परमिशन ही नहीं लिखी थी, ओके। इट मीन्स दैट टू गेट द नोटिफिकेशन दैट अ मैसेज हैज़ बीन इन कैम और रिसीव्ड ऑन द डिवाइस वी नीड टू टेक परमिशन, अदरवाइज वी कैन नॉट even receive the intent that this type of information or this type of activity has been received, okay। so ये वापस मैसेज सेंड किया तो वापस हमारा टोस्ट आया, मतलब कि अब हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है, वो जो इंटेंट ब्रॉडकास्ट हुआ है वो हमें मिल गया, ओके। अब हमें क्या करना है कि जो मैसेज आया है उसको रीड भी करना है। तो अब मैं यहाँ पे वो कोड लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वो कहाँ पे लिखना है अपने को, ऑन रिसीव में, ओके। अब क्या कहा है कोड में, आप वो देखो। हाँ, जो मैसेज हमें मिलेगा वो इंटेंट ऑब्जेक्ट में एज ए आर्ग्यूमेंट मिलेगा। तो पहले तो हम इंटेंट में जो डेटा होता है वो
बंडल स्वरूप से होता है, ठीक है। तो उसको हम इंटेंट में से रिसीव करेंगे। ये जो इंटेंट है उसमें मैसेज होगा एक्चुअल गेट एक्स्ट्राज, ओके। फिर हमें चेक करना चाहिए कि कोई मैसेज है तो सही ना, एम्प्टी भी हो सकता है कभी कभी। इज़ नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं मतलब कि उसमें डेटा है। फिर क्या कहा कि मैसेज जो होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और उसकी की होगी, क्या की होगी मैसेज की, पीडीयूज। मैसेज जो इंटेंट में होगा, मैसेज जो इंटेंट में होगा वो पीडीयूज की से सेव होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट एरे बनाना है, ऑब्जेक्ट एरे, और उसका नाम सपोज कि हम रखते हैं पीडीयूज इज इक्वल टू बंडल डॉट गेट, और उसमें की क्या पास करेंगे हम, पीडीयूज, ठीक है, पीडीयूज। और उसको टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। अब जाके ये हमारा पूरा जो मैसेज है वो इसमें आ गया, और सेंडर का इंफॉर्मेशन, जो मैसेज का बॉडी सब इसमें आ गया। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। एक्चुअली ये जो एरे है, जितने पार्ट्स है पीडीयू के, मैसेज जितने पार्ट्स में आया है उतने एलिमेंट्स होंगे एरे में, और हर एक एलिमेंट एक पीडीयू का टुकड़ा होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, फॉर ऑब्जेक्ट पीडीयूज, ओके। जितने उसमें पार्ट्स है, हर एक पार्ट के लिए पहले हम एसएमएस मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पार्ट इज इक्वल टू एसएमएस मैसेज क्रिएट फ्रॉम पीडीयू। वहाँ पे बाइट एरे बन के वो हमें मिलेगा, ठीक है। वो जो पीडीयू है ऑब्जेक्ट, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट एरे में, और उसके ऊपर से एसएमएस मैसेज का पार्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब जाके यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ओके। और एक स्ट्रिंग में बनाता हूँ सेंडर इक्वल टू नल। सेंडर अभी फ़िलहाल अभी शुरू में हमारे पास सेंडर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे हम यहाँ से रिट्रीव करना है। अब क्या करूँगा, बफर डॉट अपेंड पार्ट डॉट गेट डिस्प्ले मैसेज बॉडी, पार्ट डॉट गेट डिस्प्ले मैसेज बॉडी, ओके। जो पार्ट में मैसेज की बॉडी है वो मैंने अपेंड कर दी बफर में। फिर मैं चेक करूँगा इफ़ सेंडर इक्वल टू नल। अगर ये पहली बार लूप चल रही है तो सेंडर नल होगा, तो सेंडर इज इक्वल टू क्या हम कर देंगे, पार्ट डॉट गेट ओरिजिनेटिंग एड्रेस, ठीक है। तो सेंडर की इंफॉर्मेशन इसमें आ गई, बफर को अपेंड कर दिया, और जब ये फॉर लूप ख़त्म होगी तो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू उसमें हम ये अपेंड कर देंगे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। उसमें हम पहले रखेंगे मैसेज फ्रॉम, वो जो सेंडर है उसकी इंफॉर्मेशन, सेंडर, फिर प्लस कॉन्केट करेंगे उसमें /n, और बॉडी पार्ट मतलब कि बफर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से हमने अभी मैसेज को रिसीव किया है, ठीक है। अभी हम उसको एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं।
चलो ये अपनी एप्लीकेशन तो रन होगी। यहाँ से हम एक मैसेज सेंड करते हैं ASDFGHJKL, ओके। ये मैसेज सेंड कर दिया तो देखो टोस्ट में आ गया मैसेज रिसीव्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में क्या लिखा हुआ आ गया, मैसेज फ्रॉम, फिर नंबर 5556, ये हमारा इस AVD का नंबर है, और नीचे वो टेक्स्ट मैसेज भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिवाइस में आए हुए मैसेज को रीड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, रिसीव SMS, ओके। और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सके तो हमें ऊपर एक कंडीशन भी चेक करनी चाहिए, इफ़ गेट रिजल्ट कोड इक्वल टू ओके। अगर रिज़ल्ट जो है वो ओके है तभी हमें ये सब करना है। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा यहाँ पे हमें लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटेंट रिसीव हुआ लेकिन कुछ उसमें फेल्ड है, मतलब कि ऑपरेशन या रिज़ल्ट, तो हमें रीड नहीं करना है ना। तो ये हमें एक बात है जो ध्यान रखनी चाहिए। और एक ब्रैकेट यहाँ पे हमारा हम भूल रहे हैं इस इफ का, ये रिज़ल्ट कोड का है, और ये हमारी मेथड का। ओके, तो इसका ये फॉर लूप का, ये इसका आ गया, ये फॉर लूप का आ गया, ये इफ बंडल का आ गया, ये रिजल्ट कोड का आ गया, और ये मेथड का आ गया। तो फिर सबके ब्रैकेट्स तो आ गए, फिर भी कहीं पे हम भूल रहे हैं ब्रैकेट। ये इस इफ का है, ये इस फॉर लूप का है, ये कंडीशन का है, ये रिसीव का है, ये ऑन रिसीव का है। अच्छा, ये क्लास का भूल गए ना, क्लास का, ये जो क्लास हमने बनाया है इनर क्लास, ओके, ये पूरा क्लास हमने यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्लास के अंदर ऑन क्रिएट मेथड के बाहर बनाया है। ठीक है, इसको हम अलग से भी बना सकते थे, इस क्लास को हम अलग से भी बना सकते थे, लेकिन मैंने अभी यहीं पे बना लिया सेम क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हमने चेक की है तो हमारा काम थोड़ा इजी रहेगा। तो एक बात और आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने इसके पहले जो आपको डेमो सेंड किया था, सेंडिंग मैसेज का SMS डेमो, ठीक है, उसमें भी हमें जब पेंडिंग इंटेंट लिखते हैं हम, और उसमें जो इंटेंट हमने मैसेज सेंड का और मैसेज डिलीवर का जो दो इंटेंट बनाए थे, उनकी भी हमने ऑन रिसीव मेथड लिखी थी। तो वहाँ पे भी मेरा ये सुझाव है कि हमें कंडीशन ये लिखनी चाहिए। देखो, ये हमारा कौन सा SMS डिलीवर्ड का और ये SMS सेंड का इंटेंट जो हमने सुबह बनाया था, मतलब कि अगले उसके पहले के प्रैक्टिकल में बनाया था। तो अब देखो यहाँ पे भी मैंने जब आपको डेमो दिया था तब ये कंडीशन नहीं लिखी, फिर मैंने अभी मुझे याद आया तो कंडीशन लिख ली कि अगर रिज़ल्ट ओके है तभी हम दिखाएंगे कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली। अगर रिज़ल्ट ओके नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैसेज सेंड नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सेंड फेल्ड। उसी तरह से डिलीवरी का जो इंटेंट है उसमें भी मैंने कंडीशन लिख दी है कि इफ़ गेट रिजल्ट कोड इक्वल टू ओके, तो ही हम बताएंगे कि भाई मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है। अदरवाइज देयर इज सम प्रॉब्लम विद द मैसेज, इट इज़ नॉट सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू द रिसीवर। तो इस तरह से हमें ये कंडीशन लिखनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के साथ जो इसका कोड भी भेजने वाला हूँ, तो उसमें ये करेक्शन करके ही मैंने भेजा है, ओके। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, बट ये चीज़ मैंने जो आपको वीडियो बताया तब नहीं लिखी थी, ठीक है, कंडीशन, तो वो अभी मैंने उसमें ऐड कर दी है। तो दोस्तों ये था कि हम किस तरह से डिवाइस में मैसेजिंग, मतलब मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो अगले वीडियो में बताया, 2 तरीके बताए आपको मैंने। एक तो मैंने आपको
सेंड टू इंटेंट के द्वारा, जिसमें कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जब रन होता है इंटेंट तो डिवाइस में मैसेजिंग की एप्लीकेशन ही ओपन होती है। क्लाइंट को मैसेज सेंड नहीं करना है तो वो नहीं करे, करना है तो करे, उसको मैसेज के कंटेंट में चेंज करना है तो वो कर सकता है। मतलब कि हर तरह का कंट्रोल क्लाइंट के पास होता है, तो परमिशन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, मतलब कि ज़रूरत ही नहीं है परमिशन लेने की। लेकिन जब हम SMS मैनेजर का यूज़ करते हैं और उसकी मेथड सेंड टेक्स्ट मैसेज, तो उसमें क्लाइंट के पास किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी आवश्यक है। ओके, सेंड SMS। ओके, तो और रिसीव के लिए तो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया कि रिसीव में परमिशन लेना तो आवश्यक ही है। ओके, और जो रिसीव होगा मैसेज वो ऐसे PDU रिसीव्ड होगा, तो हमें उसी तरह से 1 बाय 1 उस PDU में से ऑब्जेक्ट का एरे मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट का एरे। उस ऑब्जेक्ट के एरे में से एक एक ऑब्जेक्ट के लिए हम SMS मैसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस SMS मैसेज के ऑब्जेक्ट में से ही हमें मैसेज का बॉडी और सेंडर की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट का एरे लिया, उसमें हर एक पार्ट के लिए फिर हमने क्या किया, क्रिएट फ्रॉम PDU बाइट एरे क्रिएट किया पार्ट, और फिर उस पार्ट में से हमने मैसेज बॉडी और ऑरिजिनेटिंग एड्रेस भी उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये था सब कुछ मैसेज रिसीविंग के बारे में। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें 2-3 वीडियोस मैंने आपको इंटेंट्स के लिए बनाए हैं और सर्विस के लिए भी बनाए हैं, वो मैं इसके बाद आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड डे।